Good afternoon, Srinivas sir. Good afternoon, Tejas sir. Good afternoon. So, yes, Good afternoon, all. Tejas sir, we have Srinivas Kadam sir. He is the associate design engineer at Eaton Company. He is the mechanical engineer and he is using NX CAD software over there. So, welcome, Srinivas sir. Welcome to our team. So, with your kind permission, shall we start, sir? Yes, 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 sure, Amit. yes, Thank sir. you. Thank you, ma'am, So, for giving me this opportunity. yes, over to Yeah. Tejas sir. Yes. Firstly, very warm welcome, Srinivas sir. Uh, Thank you, sir. Thank you for connecting with us for a Corporate Connect series. Okay. Uh, just अभी हमारे स्टूडेंट्स को जानना है कि आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपने क्या प्लान करके डिजाइन इंजीनियर बनना चाहा? आपने कहाँ से शुरुआत की? डिजाइन सेक्टर में आप एंटर कैसे हुए? So actually the interest अगर oriented अगर देखें तो फर्स्ट ईयर में हमें सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. Okay. तो when I was learning that subject I came to know कि इस सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है और मुझे इस सब्जेक्ट में और डीप नॉलेज चाहिए मुझे. So I decided at that time that it would be beneficial for me to choose as a design field as my career. So I started digging up in that subject, and I came to know about the softwares and the design softwares. Like these are the kind in which we perform the design. And so then I started discussing and involving more in that field. So तब मुझे पता चला कि CAD software की coaching भी होते हैं. तब मैंने when I was in the second year, then that second year itself I joined the CAD center. So it was a course regarding the master diploma in product design. I started with that course, and when I started with that course, I came to know that there are different fields in the designing like 2D, 3D modeling, and the analysis, meshing, and like all other fields. So the Siddhant sir, he was there for to help me. तो Yeah. उन्होंने मुझे बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप ये इस डायरेक्शन में प्रोसीड कीजिए. तब मुझे पता चला कि डिजाइनिंग में कैसे कैसे ग्रो करना पड़ता है, कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो फिर जब मैंने लाइक वही कमिंग टिल फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर जब आ गया मेरा, तब अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया था सर, और हमारे कॉलेज के प्लेसमेंट थोड़े डिले हो गए. तो सिद्धांत सर ने तब मुझे स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट. तब उन्होंने मुझे एक रेलवे का एक प्रोजेक्ट दिया था छोटा सा. तो इट वाज रिगार्डिंग द सिमुलेशन, एंसी सिमुलेशन. तो तब मुझे पता चला कि एक्चुअल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम क्या होते हैं, हम जो थ्योरेटिकल सीखते हैं वो बहुत अलग अलग होता है, यहीं पर कहीं पर मैच नहीं होता. तब मुझे पता चला कि हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज और एक्चुअल इंडस्ट्रियल नॉलेज को कैसे इंटररिलेट करना चाहिए. तो उस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में और एक हमने प्रोजेक्ट दिया था, मतलब ऐसे मॉडलिंग के और मशीन के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए. तब मुझे एक्चुअल इंडस्ट्रियल नॉलेज के बारे में पता चला. NX CAD. We offer training in NX CAD in certificate, diploma, professional and master diploma courses. Our programs are as comprehensive as the software itself. We teach you how NX CAD is used in parametric design, direct solid and surface modeling, analysis and manufacturing by introducing all the key features of the software, such as advanced solutions for conceptual design, 3D modeling and documentation, industrial design and styling, parametric solid modeling, feature-based and direct modeling, free-form surface modeling, Class A surfaces, reverse engineering using synchronous modeling, styling and computer-aided industrial design, engineering drawings, drafting. Enroll in the NX CAD course of your choice and learn to design products and product development processes the NX CAD way. फिर जैसे ही कोरोना फिनिश हुआ, तब कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू कर दिया हमारे. तो कैंपस के थ्रू मुझे ईटन में जॉब प्लेसमेंट हो गया मेरा. तो ईटन में मुझे जब ज्वाइन किया, तो आई वाज सिलेक्टेड एज एसोसिएट डिजाइन इंजीनियर. Right. So in the ईटन we use the NX software, majorly NX software हम use करते हैं, and somewhat part of the
SolidWorks. SolidWorks. Our programs on SolidWorks start with the introduction to the user interface and progresses to basic drawing with sketch tools, using key features from extrude boss, base to boundary cut, and creating 3D models. The course covers all key features of SolidWorks, such as SolidWorks Intelligent Feature Technology for modeling, physical dynamics to identify the collision and physicality of the parts, surfacing, magnetic mates for working with large assemblies, e-drawings, and PDM solutions. We offer SolidWorks in certificate, diploma, professional, and master diploma courses. Enroll and learn how to visualize your ideas, create prototypes, simulate, and quickly transform new ideas into great products. But Okay. major part is NX. हाँ, तो Okay. NX तो already covered हो चुका था मेरा classes में CAD center में, so I was well known for the software, so it was easy for me to cope up with the industrial design and everything. तब यहाँ पर मुझे पता चला कि the minute things which we neglect while we are learning or we are in the college are like GD&T, the small symbols and the precision in the design. So that I came to know when I joined over here. तो तब मुझे पता चला कि माइन्यूट चीजें हम जब जो इग्नोर करते हैं कि अरे छोड़ दो ये इतना एडजस्ट कर लेगा, लाइक द जुगाड़ काइंड ऑफ थिंग, so that are not accepted in the industry. So Exactly. that is major thing. These are not neglected because the minute things are like noticeable in the design in the industry. So it is always better to have the complete knowledge while we are in the initial stages of our career. ओके ग्रेट। और श्रीनिवास सर, अभी आपने जैसे मेंशन किया कि आपने सेकेंड ईयर में ही कैड सेंटर ज्वाइन किया था, ज्वाइन किया क्या था, right? क्या ड्राइव फोर्स था कि आपने कैड कोर्सेज को ज्वाइन करना सेकेंड ईयर में ही सही समझा? मैंने जब हमारे कॉलेज के सीनियर से बात किया तो उनसे मुझे ऐसा पता चला कि जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे उतना रहेगा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो 4th ईयर पास आउट होने के बाद वो रियलाइज करते थे कि अरे हमारा ये चीज तो सीखना रह ही गया, मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द जॉब इफ यू आर लुकिंग जॉब इन द इंडस्ट्री डिजाइन सेक्टर. राइट। So the CAD is the basic thing that is needed. You can say without the CAD software you cannot stay in the design industry. So CAD software are the basic. So that was the force which motivated me to join the software. या थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे लोग या फिर स्टूडेंट्स हो, फ्रेशर्स हो, उनके वो लगता है कि हाँ लास्ट ईयर में जाऊंगा मैं कैड कोर्सेज करूंगा और मुझे जॉब मिल जाएगा, तो ये कितना बड़ा मिथ है? आप उसपे यस उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी दे दीजिए मुझे सिर्फ। यस और एटलीस्ट अब हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एटलीस्ट 2D सॉफ्टवेयर, एक 2D सॉफ्टवेयर, एक 3D सॉफ्टवेयर और एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर तो कम से कम आना चाहिए इंडिविजुअल को, मिनिमम, दैट्स द मिनिमम क्राइटेरिया. And for learning one software of 2D, it takes almost 5 to 6 months if you do it on a regular basis and thoroughly. So if you are planning to do that software in the last year, then I would think it's not a good idea, because you will at least need 1.5 to 2 years to learn the software completely, and which is a good idea if you are in the final year. That means you should be proficient in the software before you joining any or giving any interview, right? Yes. So regarding the interview, I remember one thing, like when I was doing my interview for the E10, so that interview went on for near about 1.5 hours. So out of 1.5 hours, near about 15 minutes, the interview was only on the CATIA with me. So they asked me whole thing about the CATIA, all the modules, all the processes, all the like what are the processes, the sheet metal, about the sheet metal, about the designing, about the surfacing, everything, all the modules. Right. So it was near about a 15 minutes interview. So industrial people, they check all the knowledge if you are proficient. Yeah. So it's better for you to learn the software in the initial stages itself. बिल्कुल सर. And also have the hands-on experience on that software. Yeah, great. सर थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका करंट डेजिग्नेशन क्या है ईटन में, साथ ही साथ आपका वर्क प्रोफाइल कैसे है, क्या वर्क प्रोफाइल है एग्जैक्टली एक डिजाइन इंजीनियर? Currently I'm assistant design engineer in the EPAM. So we deal with the counterpart. So in the
India we only have the research and development center, and actual manufacturing plant is in the Bonn, Germany. It's a Europe-based company, Yeah. America-based company. The manufacturing plant is in the Germany. So basically, we from here support on the design, the engineering design support is provided from Pune, India. So we basically make the modifications required as per the new market demand, and the new product like that NPI and MP, like concept, new product innovation, new product development. These are the concepts, these are terms used. So in this industry, we make the new product innovation, like the products which are actually there in the market that are needed to be developed or need to be improvement according to the market demand. So the changes required for that demand are done from here. Okay, all the changes done from your side only. Yes, all that. Okay. So we only get the customer feedback from the Europe side, and the changes are made from the here. यस यस सर. Yeah. और श्रीवनाथ सर, आपने जैसे बताया कि NX एंड सॉलिड वर्क्स यू Yes. यूज बोथ हाँ. सॉफ्टवेयर इन दी कंपनी. तो Yes, दो सॉफ्टवेयर यूज करने का उनका क्या एजेंडा था, या फिर क्या ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर, अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर, और कौन से वर्क डन किए जाते हैं उन सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, ये मुझे बता सकते हैं आप प्लीज? यस. तो हम दो सॉफ्टवेयर यूज करने का बेसिक एजेंडा ये है कि जो NX सॉफ्टवेयर है तो वो जर्मन, वैसे जो सीमेंस का है तो ऑब्वियसली वो यूरोपियन पीपल प्रेफर NX सीमेंस है इसलिए. तो और जो यूके वाले पीपल है जो यूके, तो उनके लिए जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनके लिए हम सॉलिडवर्क्स यूज करते हैं. बस वो बहुत लिमिटेड एक्सेस है इसका. हाँ, यूके इंडस्ट्री के लिए. ओके. और बाकी यूरोप के लिए पूरा सीमेंस NX सॉफ्टवेयर ही चलता है. और सीमेंस का लिमिटेड यूजेस है कि जो हम सिमुलेशन का पार्ट ऐड करते हैं तो सॉलिडवर्क्स पे थोड़ा अच्छा हो जाता है NX. राइट. हाँ, एनसिस से थोड़ा कम होता है, लेकिन जब रिजल्ट हमको एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली चाहिए होते हैं तो वो वहाँ पर मिल जाती है. हमारे यहाँ स्पेशल टीम है, सिमुलेशन टीम, पर वो तो उनके हिसाब से करते हैं, लेकिन जो प्री वर्क और प्रोएक्टिव वर्क जो होता है हमारे यहाँ डिजाइनर इंजीनियर के साइड से, तो वो हम सॉलिडवर्क्स पे कर देते हैं सिमुलेशन के लिए. तो आप ऐसा कह सकते हो कि मेजर पार्ट लाइक 90% ऑफ द वर्क इज डन ऑन द NX, only the 10% is used for the SolidWorks, and in the NX what the modeling module is also used, and the drafting drawing module is, both the modules are used. राइट. Majorly. Yeah. Yes. तो हर एक कंपनी में जब मल्टीपल सॉफ्टवेयर का यूजेस होता है तो उनकी हाँ. प्रायोरिटीज डिफाइन होती है सॉफ्टवेयर के साथ. Different होती है. या Yes. यस यस. और सर, यूजुअल वर्क प्रोफाइल क्या होता है एक डिजाइन इंजीनियर का? आप एज अ डिजाइन इंजीनियर आपका डेली यूजुअल वर्क प्रोफाइल क्या है? आप क्या करते हैं सॉफ्टवेयर पे एग्जैक्टली? अभी जैसा मैंने बताया कि मॉडिफिकेशन के हिसाब से जैसे बताया मैंने, यस. तो अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन आता है तो उनके हिसाब से हम एक डिजाइन प्रिपेयर करते हैं. सपोज एक कंसेप्ट डिजाइन किया हमने, तो कंसेप्ट डिजाइन का फिर वो डिजाइन वैलिडेशन होता है. डिजाइन वैलिडेशन के अंदर ऐसा होता है कि आपका जो डिजाइन बनाया है अपनी जो मॉडल में, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के पीपल के साइड से अप्रूव हो जाना चाहिए. फिर टूलिंग के साइड से होना चाहिए. 3D प्रिंटिंग अगर पार्ट है तो 3D प्रिंटिंग के पार्ट से होना चाहिए. उसके मोड्स कैसे होने चाहिए, मोड प्रिपरेशन, और जिग्स एंड फिक्सचर में अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो जिग्स एंड फिक्सचर के हिसाब से उसका डिजाइन हो जाना चाहिए. और ये हो गया कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू. और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी डिजाइन का कंसेप्ट ऐसा होता है कि जहाँ पर मटेरियल यूज होता है, मटेरियल सिलेक्शन कॉस्ट के हिसाब से होता है. अगर वेट के हिसाब से होता है, ज्यादा कॉस्ट आ रहा है तो कम करना है. अगर और DSM में डिजाइन फॉर असेंबली, ऐसा ही वो भी कंसेप्ट है कि असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारा डिजाइन कैसा है. मतलब मिनिमम टाइम में उस प्रोडक्ट का असेंबली हो जाना चाहिए कि हम मिनिमम टाइम में मल्टीपल प्रोडक्ट असेंबल कर पाए. तो उसके हिसाब से ये सब फैक्टर के बेसिस पे हम डिजाइन वो DVP डिजाइन वैलिडेशन रिपोर्ट एग्जामिनेट होता है डिजाइन हमारे डिजाइन का. अगर जितना अच्छा आपका रिपोर्ट बनेगा उतना अच्छा आपका डिजाइन अप्रूव हो जाएगा जल्दी. बिल्कुल. और वो मॉडिफिकेशन बहुत क्विक करने पड़ते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाला एक इनपुट देता है तो उसके हिसाब से, फिर मार्केट वाला एक इनपुट देता है उसके हिसाब से, फाइनेंस वाला एक इनपुट देता है उसके हिसाब से. तो सबके हिसाब से मिलकर जब इनपुट आते हैं तो बहुत फास्ट आते हैं, बहुत फास्ट में आउटपुट देना पड़ता है. तो जितना प्रोफिशिएंट आप डिजाइन सॉफ्टवेयर में रहोगे उतने फास्ट आप चेंजेस कर पाओगे. और जैसे कि आप डिजाइन केयरफुल हो तो आपको खुद को पता होता है कि कौन सा पार्ट में क्या चेंज किया तो आसानी से कौन सा पार्ट में अफेक्ट हो जाएगा. ओके. तो हाँ, so you should be always thorough with the design or the part which you are making changes or modifying. जी सर. तो हाँ, यस सर, बोलिए. और theoretical कैलकुलेशन के हिसाब से भी आपको परफेक्ट होनी चाहिए. जैसे कि 100 का जो सब्जेक्ट है
वो स्ट्रेसेस एंड बिल्डिंग स्ट्रेसेस, एसएन कर्व जो है, साइकिल, वो सब जो है वो आपको थ्योरेटिकल पूरा पता होना चाहिए। मतलब पहले थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के बाद ही आप मॉडिफिकेशन कर पाओगे उसमें। राइट। नहीं तो फेल होने के बाद टेस्ट में अगर फेल हुआ तो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है टेंशन में। तो मतलब टेस्ट ऑलमोस्ट 99.99% पास होना चाहिए, ऐसा डिजाइन करना पड़ता है। क्योंकि अगर हायर टेस्ट में एक्यूरेसी फेल होनी हुआ चाहिए। तो हायर एक्यूरेसी होना चाहिए। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आपको इनिशियल स्टेज में कंप्लीट कर लेनी चाहिए। यस यस। सर, अभी आपने जैसे बताया कि एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वैलिडेशन होता है, अप्रूवल आते हैं, सिंबल्स वगैरह उनके सब वेरिफिकेशंस होते हैं। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मटेरियल कॉस्ट, मिनिमम टाइम में असेंबली होना चाहिए। तो इन सब पार्ट में एक डिजाइन इंजीनियर क्या देखता है, और ये सब पार्ट कवर करने के लिए डिजाइन इंजीनियर का वहां पर होना कितना जरूरी है, ये मुझे थोड़ा बता सकते हैं सर? एक एग्जांपल से बता देता हूँ मैं। जी जी सर। सपोज डिजाइन पिक्चर की असेंबली है, लाइक पेन एंड कैप असेंबली सपोज आप कंसीडर कर लीजिए। तो पेन एंड कैप की असेंबली है, तो अगर हम एक उसको जिगजैग पिक्चर से डिफाइन करें तो ये इनलाइन असेंबल हो जाता है। जी क्योंकि अगर ये पेन का जो आउटर डायमीटर है और कैप का जो इनर डायमीटर है वो अलाइन है के साथ, इसलिए आराम से असेंबल हो जाता है। अगर ये अलाइन नहीं है या इनलाइन नहीं है इनका एक्सिस, तो क्या हो जाता है कि थोड़ा टेढ़ा करके अगर हमें असेंबल करना पड़ जाता है तो जिगजैग पिक्चर असेंबल नहीं हो पाती और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आ जाएगा कि हम इसमें ऑटोमेशन नहीं कर पाएंगे। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो होगा उसको हमें ज्यादा वर्कर की जरूरत नहीं, ज्यादा वर्कर मतलब मैनुअल टास्क बढ़ जाएगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो मतलब मार्केट में प्रोडक्ट आने में डिले हो जाएगा, तो बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें ये डिजाइन करना पड़ता है कि इन दोनों का एक्सिस एक होना चाहिए, तभी असेंबली इजी होगा और तब जाके ये ऑटोमेशन हो पाएगा और मतलब हो जाएगा कि यस यस सर। हाँ मैनुअल आवर्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल ऐसा था कि ऐसा डिजाइन में कंसिडरेशन कर लेना चाहिए हमें। तो राइट। हमें इसके एक्सिस एक लाइन में लाने के लिए कौन सा पार्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, कौन सा पार्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, कहाँ पर ड्राफ्ट देना पड़ेगा, कहाँ पर बिल्कुल मटेरियल करना पड़ेगा, फीचर्स कहाँ ऐड करने पड़ेगे, ये सब देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सर और एक उसमें सवाल था कि अभी एक फ्रेशर डिजाइन इंजीनियर रहेगा, तो हाँ फ्रेशर्स यस के थ्रू आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं? फ्रेशर किस तरह से उनका मतलब प्रोफिशिएंसी लेवल होना चाहिए, या फिर उनके की स्किल्स क्या होने चाहिए डिजाइन फील्ड में एंटर करते वक्त? एंटर करते। या तो सर जैसे मैंने बताया कि एक फ्रेशर डिजाइन इंजीनियर को एटलीस्ट एक 2D सॉफ्टवेयर, एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये तीन तो मिनिमम आने ही। हेलो सर, कैन आई ऑडिबल? सर म्यूट हो गए। देयर वाज हाँ, इज इट बेटर नाउ? या या यू आर ऑडिबल। सॉरी सर, देयर वाज अ प्रॉब्लम, सॉरी। नो प्रॉब्लम सर। या हाँ सर, तो जैसे वो तरह से एक मिनिमम सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उस सॉफ्टवेयर की प्रोफिशिएंसी पूरी होनी चाहिए। मतलब आपको उस सॉफ्टवेयर का होल इन एंड आउट पता होना चाहिए। मिनिमम सॉफ्टवेयर एक तो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप स्टूडियो में ऑटोकैड लेते हो तो ऑटोकैड में आपको सारे कमांड, सारे शॉर्टकट, सारे जो अपने फॉर्मूले थे वो सब पता होने चाहिए। मॉडलिंग में आते हो तो मॉडलिंग में आपको डिजाइनिंग भी आना चाहिए, 3D मॉडल, और उसका असेंबली भी आनी चाहिए। असेंबली में फिर क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं, टॉप टू बॉटम असेंबली, बॉटम टू टॉप असेंबली, जो जो पार्ट्स होते हैं वो सब आना चाहिए मॉडलिंग। और मैं अगर एनालिसिस में आ गए तो आपको बेसिक मैकेनिकल इंडस्ट्री में टॉप बेसिक यूज होने वाले स्टैटिक एनालिसिस, थर्मल एनालिसिस, वाइब्रेशन, वो जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सब चार तो आनी चाहिए आपको बेसिकली। बिल्कुल। तो आप जब आप अगर कंपनी में जाते हो, अगर उनका कंडीशन है कि आपको क्रियो आना चाहिए सपोज, तो आपको क्रियो में इतनी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि मिनिमम आपने उस पर हैंड्स ऑन कम से कम 6 महीने तो काम किया होना चाहिए, हैंड्स ऑन लर्निंग का छोड़ के। लर्निंग में आपको 6 महीने लग जाएंगे और हैंड्स ऑन में 6 महीने काम किया रहेगा तो ही आपको हैंड्स ऑन मतलब एक्सपीरियंस आप लोगों में बोल सकते हो कि आप इंडस्ट्री के लिए एलिजिबल हो, नॉट बिल्कुल परफेक्ट, सर, एलिजिबल बिल्कुल। तो हो जाओगे आप। हाँ, तो उस हिसाब से आपको मिनिमम इतना तो आना चाहिए। आप मैक्सिमम जितना कवर करोगे उतना आपके लिए कम चांसेस ज्यादा रहेगा। सपोज एक कंपनी है कि उनको चाहिए क्रियो वाला सॉफ्टवेयर, आपने प्रोफिशिएंसी घटिया मिली है, तो वैसा भी नहीं चलेगा। आप घटिया कर जो प्रोफिशिएंट रहो घटिया में, लेकिन नॉलेज आप क्रियो का भी रखोगे, कैड का भी रखोगे, सॉलिड वर्क का भी रखोगे, लेकिन प्रोफिशिएंसी एक का रखो। हाँ, क्योंकि अभी मार्केट में जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं होता, जैसा हमको चाहिए वैसा हमें अरेंज करना पड़ता है। तो अगर आप मास्टर एक में रहोगे और नॉलेज सबका रहेगा तो आप कौन से भी इंडस्ट्री में जाओगे, कौन सा भी सॉफ्टवेयर पे रहोगे तो आप कोप अप कर पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है, डिजाइन रीडिंग पता है, तो मतलब डिजाइन मॉडलिंग पता है, तो आप एक
सॉफ्टवेयर में पता रहेगा तो दूसरे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली आप एडजस्ट कर पाओगे, बस एक सॉफ्टवेयर आपको परफेक्ट आना चाहिए और नॉलेज बाकी का होना चाहिए। यस सर, यस। यस सर। तो और टेक्निकल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जीडीएस सिंपल सॉल्व जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है अपने बेसिक स्ट्रेसेस फोर्सेस जो इनका इम्पैक्ट होना चाहिए, इनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत होता है थ्योरेटिकल कंडीशन डिजाइन राइट, में। राइट। और उनको हाँ अभी जो मार्केट में करंट चल रहा है ट्रेंड की ऑटोमेशन 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 के सब मतलब इसके पर्सपेक्टिव सोच रहे तो सीआई टर्म है अपने यहाँ की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो उनके अंदर जैसे टर्म्स आते हैं मैथ्स डीएमएस काइजन 5S प्रिंसिपल ये सब जो हमें इंजीनियरिंग में पढ़ाया होता है लेकिन हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम सबको जैसे थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आई गेस की एक प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो उस नॉलेज के साथ आते हैं इंडस्ट्री में तो उनको ज्यादा विजिबिलिटी मिल जाएगा। यस सर। जैसे आपने कहा कि एटलीस्ट एक 2D, एक 3D और एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर आना चाहिए। 6 महीना तो उसमें लर्निंग में चला जाएगा, 6 महीना आपको उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए और तभी जाकर वो प्रोफिशिएंसी आएगी एक फ्रेशर में। हाँ एक यस। प्रेशर है। और सर फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रेशर आपके डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है तो क्या Yes. चैलेंजेस आते हैं उस फ्रेशर के साथ आपको? व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग विद फ्रेशर्स? सर तो फ्रेशर अगर कोई ज्वाइन करता है तो फर्स्ट उनको चैलेंज ये होता है कि अपनी प्रोसेस एक्सप्लेन कर देना है कि हम क्या करते हैं एक्चुअल डिजाइन में अपना वर्क क्या होता है। और Yeah. बहुत बार ऐसे होता है कि हम जब उनको पता होता है टास्क क्या होता है लेकिन टास्क कैसे करना है कैसे इम्प्लीमेंट करना वो पता नहीं होता है उनको। मतलब अगर सपोज आप असेंबली में कुछ चेंज कर रहे हो उनको दिया गया टास्क कि तुमको ये फीचर ऐड करना है ये फीचर रिमूव करना है सपोज एक ड्राफ्ट देना है एक पार्ट को, तो उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ड्राफ्ट कैसे देते हैं। तो वो ऐसे मतलब एक्सट्रूड कमांड यूज करके ये कमांड यूज करके वैसे ड्राफ्ट जुगाड़ काइंड ऑफ थिंग नहीं होना चाहिए। ड्राफ्ट पे प्रॉपर कमांड होता है प्रॉपर एंगल होता है जितना दिया होता है उतना ही उनको स्पेसिफिक उतना ही करना चाहिए नॉट एक्स्ट्रा नॉट कम। जैसे हम डिजाइन करते कि यहाँ पर उसको एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पर रिमूव मटेरियल करके ड्राफ्ट दे दिया वैसा नहीं होना चाहिए। ड्राफ्ट मतलब प्रॉपर ड्राफ्ट ही आना चाहिए उसके हिसाब से। और अगर 2D में आप जा रहे हो तो ड्राइंग उनका चेक किया हमारे यहाँ क्यूसी प्रोसेस भी होता है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, तो उसमें फ्रेशर की ड्राइंग बहुत रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उनके ड्राइंग एक्यूरेट नहीं होते। तो एक्यूरेट इन द सेंस कि उनका पार्ट नेमिंग और डायमेंशनिंग बराबर नहीं होता। मतलब डायमेंशनिंग जब देते टाइम बहुत पास पास में अगर लाइन हो तो लाइन से एग्जैक्ट कौन से डायमेंशन से लाइन कौन चूज करना है कौन से डायमेंशन तक लेना है वो फ्रेशर बहुत बार मिस हो जाते हैं। मतलब वो विदाउट जूम करके सीधा पॉइंट डाल देते हैं वहां पर तो वो मिस अलाइनमेंट हो जाता है डायमेंशन का। राइट। हाँ और ये बहुत बाद में जब आकृति का ड्राइंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे ये डायमेंशन तो मैच नहीं हो रहा है, तो फिर से हमें डिप डाउन करना पड़ता है कि कौन सा डायमेंशन गलत हो गया ड्राइंग पे। तो इन दैट केस की फ्रेशर्स को एक तो ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग बहुत अच्छी तरह से और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। ओके। यस सर। और वो ओवरकम करना ही चैलेंजेस, तो फ्रेशर ने क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में ये लर्निंग करते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त? कि 6 मंथ का एटलीस्ट उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं तो उन्होंने एज अ लर्निंग मतलब हम उससे कुछ सीख रहे हैं ये बोल के वो उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने चाहिए ना कि बस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने जो किया था बस वही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि अरे अपने पास 10 प्रोजेक्ट है 10 प्रोजेक्ट इस महीने कंप्लीट करना है तो बस कंप्लीट करो कैसे भी करके बस दिखने में सेम दिखना चाहिए। आप कौन सा फीचर यूज करो कौन सा भी टैब यूज करो लेकिन वैसा नहीं होता है। हाँ मतलब मैंने जो गलती की तो मैं बता रहा हूँ कि आप बस कंप्लीट कर रहे हैं पॉइंट ऑफ मत करो, आप पूरा सीख लो उसमें ये कमांड इसके बाद क्यों करना है पहले ये कमांड नहीं क्यों पहले बाद में ये कमांड क्यों, तो उसमें भी एक रीजन होता है। तो एक बेसिक डिजाइन ऐसा था कि एक शाफ्ट का एक एग्जांपल मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि शाफ्ट आप कैसे डिजाइन करोगे बेसिक शाफ्ट सिंपल। तो मैंने से बोला कि सर्कल ड्रॉ करूंगा उसको एक्सट्रूड कर दूंगा तो शाफ्ट बन जाएगा। तो बोला ये गलत है, शाफ्ट ऐसा नहीं बनाती कोई भी। तो आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको एक्सिस देके उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा तब वो एक्चुअल शाफ्ट बन जाएगा। क्योंकि जब आप एक्सट्रूड करोगे उसको तो स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल सरफेस एक लेयर पे आ जाएंगे तो वो शाफ्ट नहीं रहेगा, वो लेयर्स में आ जाएंगे। हाँ अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको रिवॉल्व करोगे तो वो बराबर शाफ्ट बन जाएगा। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें है तो ये बहुत मैटर करती है कि आप डिजाइन भी कैसे करते हैं। हाँ आप डिजाइन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन
डिजाइन का अप्रोच ऐसा होना चाहिए। आप दिखने में तो दोनों भी सेम रहेंगे, सर्कल ड्रॉ करके उसको स्क्रू करो या रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको रिवॉल्व करो, या लेकिन अप्रोच कैसा होना चाहिए ये एग्जाम्पल है उसका। राइट, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग हाँ स्टैंडर्ड्स है उनको कोप अप करने वाला हाँ, डिजाइनिंग का अप्रोच होना चाहिए। यस यस यस। यस यस सर। और अभी अगर कोई फ्रेशर है तो कौन कौन से की स्किल सेट उन्होंने एक्वायर करने चाहिए उसमें एज ए डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए? डिजाइन, हाँ सर, तो बेसिक तो उनको उनके अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, डिजाइन वाली जो टॉम टॉम जो हो गया मटेरियल सिलेक्शन वाले, बेसिक मेटलर्जी का नॉलेज होना चाहिए, अगर वो मेटलर्जी इंडस्ट्री में मतलब जो इंडस्ट्री में जा रहे हैं या स्पेसिफिकली उनका नॉलेज होना चाहिए। ये थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, और उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, मतलब उनको अगर यहीं पर बोला कि बिल्डिंग मूवमेंट निकालो, सरफेसेस फोर्सेस निकालो, स्ट्रेसेस निकालो, तो उनको आना चाहिए थ्योरेटिकली। ये तो बेसिक हो गया। अब अगर सॉफ्टवेयर में आते हो तो उनको डिजाइनिंग में प्रॉपर मॉडलिंग का नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। अगर अभी जब वो फ्रेशर्स लोग आएंगे तो उनको तो सीधा इंडस्ट्री में फ्रॉम स्क्रैच मॉडल बनाने को तो नहीं मिलेगा, तो उनको जो एक्चुअल मॉडल बनाना है उसमें बस मॉडिफिकेशन करने को मिलते हैं, फ्रेशर्स को सीधा स्क्रैच से मॉडल बनाने को नहीं मिलेगा। तो उनको बेसिकली डिजाइन रीडिंग जो कंसेप्ट होता है वो आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्रेशर्स आते हैं तो पहले हमको नियर अबाउट 1 मंथ यही बताने में जाता है कि आप डिजाइन रीड कैसे करते हैं, आपके पास अगर ड्राइंग है या मॉडल है तो उसको रीड कैसे करना है। हाँ, तो अगर वो डिजाइन रीडिंग या ड्राइंग रीडिंग अगर वो पहले से ही सीख कर आते हैं तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, या और उनको विजिबिलिटी भी अच्छी मिलेगी। अगर उनको पहले से डिजाइन रीडिंग आता है तो उनके टेक्निकल इंटरव्यू जो राउंड होते हैं कंपनी के, तो उनमें मतलब इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि वो एग्जाम्पल देखे कि इसको डिजाइन रीडिंग आ रहा है, समझ या में भी आ रहा है। यस यस हाँ, तो अगर डिजाइन रीडिंग अच्छे से आता है तो ये वो एक स्किल सेट है जो एक्वायर कर लेना चाहिए। यस सर। और बहुत सारे लोगों को या फिर फ्रेशर्स को सर ये पता नहीं होता कि एक्वायर करे कैसे, तो उसके ऊपर आप क्या बता सकते हैं कि हाँ ये स्किल सेट जो है या फिर की स्किल सेट जो है तो उन्होंने कहाँ पर कैसे एक्वायर करने चाहिए सर? सर, जैसे कि मैंने बताया कि अपने हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अपने जो 6 मंथ का ड्यूरेशन जिसमें हम सीख रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपको ज्यादा भी लग सकता है तो कम भी लग सकता है, लेकिन जब उस टाइम हम करते हैं तो एक हमने एक टारगेट रखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट का असेंबली में 4 आवर्स में करूंगा, ये प्रोडक्ट का मॉडलिंग में 2 आवर्स में ही करूंगा। तो अगर हम जब टाइम लगा कर देखते हैं तो नियर अबाउट पहले 20 मिनट आप जो है वो डिजाइन एडिटिंग पे ही दे दो, पूरा पूरा डायरेक्ट मतलब शीट मिल गया आपको ड्राइंग शीट, तो आप सीधा स्टार्ट मत करो, पहले एक बार देख लो उसको, एनालिसिस कर लो कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा टॉप टू बॉटम करें, बॉटम टू टॉप करें, या कौन सा फीचर पहले ड्रॉ करें, कौन सा पार्ट बाद में डिजाइन करें। ये जो होते हैं ये पहले आप मतलब इनिशियल स्टेज में आप पहले 20-25 मिनट लो आराम से, पहले बस डिजाइन ड्राइंग शीट को देख लो। यही मैं कहूंगा कि आप डिजाइन रीडिंग वैसे ही improve कर पाओगे, और टाइम लिमिट के साथ जितना आप करोगे तो उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, यस। तो क्योंकि टारगेट सेट करके अगर हम कोई डिफाइन करते प्रॉब्लम तो जल्दी हो जाता है। राइट, यस। यस, तो उसमें आपको एक टारगेट सर्टन लेकर ही काम करना चाहिए काम करना एक्वायर चाहिए। को। राइट राइट सर। यस और मुझे बस एक क्यूरियोसिटी है तो पूछ रहा हूँ सर, एक आध पर्टिकुलर यस प्रोजेक्ट के बारे में आप बता सकते हैं कि यस प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ हाँ से होकर एंड कहाँ तक होता है, सॉफ्टवेयर के हाँ ऊपर उसका क्या रोल होता है और डिजाइन इंजीनियर उसमें क्या क्या करते हैं सर? आपका अगर कोई यस प्रोजेक्ट हो तो अभी, उसमें प्लीज बताइए। हाँ सर, यस सर, अभी एक प्रोजेक्ट है हमारा, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं। जी एक सर। NHI एक ऑक्सिलरी है हमारे यहाँ हम्म, की, तो उसमें कैसा था कि जो एक दो पार्ट्स होते थे, तो पहले दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम स्क्रूज का इस्तेमाल करते थे, स्क्रूज का राइट। वाले, तो वो टाइट करके, हाँ, तो हमने उसमें मैन्युफैक्चरिंग मतलब कस्टमर डिमांड और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के ये डिजाइन किया कि उसको स्क्रूज हटा के बस निक लॉक जो होते हैं और क्लाइंट जो होते हैं तो उनके बेसिस पे हम उसका असेंबली कर देंगे, ना कि स्क्रूज के बेसिस पे। तो ये इस हिसाब से हमने चेंज किया था। तो उसके हिसाब से हमने जब स्टार्ट किया अप्रोच, तो अब हमने डिसाइड किया कि स्क्रूज के जो होल्स है जो पहले अवेलेबल है तो उसको कैसे मतलब दूसरे फीचर में ऐड करें या रिमूव कर दे उसमें, और जो नए जो क्लास वाले फीचर या स्नैप्स वाले फीचर है तो उसमें कैसे ऐड करें। तो हमारी एक टीम होती है पूरी 3 लोगों की, मतलब हमारी इस प्रोजेक्ट में 3 लोगों की टीम थी, तो तीनों ने अपने अपने कंसेप्ट दिए। हम्म, तो जो उनका कंसेप्ट वैलिडेशन जब हो गया तो उनमें से एक डिजाइन फाइनल होता है। तो ऐसा नहीं कि एक का ही पूरा डिजाइन फाइनल होता है, कुछ फीचर इस वाले डिजाइन ऐसे ऐसे हैं, कुछ फीचर्स इस वाले डिजाइन ऐसे होते हैं, तो एक कंबाइन करके एक डिजाइन वाले फीचर
फाइनल हो जाते हैं, और ये फाइनल करने वाली टीम भी होती है। मतलब जैसा नहीं कि हम तीनों ने बनाया, तीनों ने फाइनल कर दिया। सॉरी, तो एक टीम होती है फाइनल करती है। जब वो डिजाइन टीम फाइनल हो जाता है, तब हम उसका मतलब ये जो कंसेप्ट डिजाइन होता है उसका प्रॉपर मॉडल नहीं बनाया, बस कंसेप्ट फाइनल हुआ, फिर हम लोग उस पे डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे। जब हमारा डिजाइन बन जाता है, असेंबली बन जाता है, तब वो असेंबली मैंने जैसे कहा कि डिजाइन वैलिडेशन के लिए जाता है। तो डिजाइन वैलिडेशन मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास जाता है, फिर फाइनेंस वाले के पास, बिजनेस केस वाले के पास, सबके पास जाता है। तो फाइनेंस सपोज मैन्युफैक्चरिंग वाला उसके इनपुट देता है, तो बोलता है कि आपने ये डिजाइन डिजाइन कौन सबसे अच्छा किया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कौन में इसमें ये डिफेक्ट्स है। जैसे डिफेक्ट्स की ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर पुराना स्क्रू वाला ही वर्जन हम रखते हैं, तो उसमें हम सपोज 2.5 मिनट्स लगता था एक असेंबली करने के लिए, लेकिन अब आपके इसमें असेंबली में ये आपने चेंज किया, ये फीचर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो हमको अप्रोक्स 3 मिनट लग रहा है। तो ये एक पॉइंट, हाँ, तो इसका एक आपको लग रहा होगा कि 30 सेकंड से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन 30 सेकंड से इतना फर्क पड़ेगा कि हमको एक टाइम में नियर अबाउट 1.5 मिलियन वो पार्ट बनाने हैं। तो 1.5 मिलियन बनाने हैं, मतलब उसका अप्रोक्सीमेट 30 सेकंड अगर लेट हो जाता है, तो उससे नियर अबाउट हमें 0.3 मिलियन का इफेक्ट हो जाता है पर ईयर का कैलकुलेशन करें। तो इतना मेजर अमाउंट में 0.3 मिलियन पार्ट कम बन रहे हैं आपके, मतलब बहुत मेजर अफेक्ट हो रहा है वो बिजनेस को। राइट। हाँ, तो इस हिसाब से हमें हाँ फिर से डिजाइन में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अगर मटेरियल वाला बोलते हैं, अरे कॉस्टिंग वाला बोलते हैं कि अरे आपने जो प्लान इस्तेमाल किए वो एक्चुअली सपोज एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम का कॉस्ट बहुत ज्यादा है आपके प्रोडक्ट के लिए। आप एल्यूमिनियम को रिप्लेस करके कोई और मेटल सेलेक्ट करो, या तो प्लास्टिक कंपोनेंट यूज कर लो, कोई पॉलीकार्बोनेट वगैरह। तो उसके हिसाब से कोई इनपुट आते हैं, तो हम मटेरियल अल्टरनेट मटेरियल से अल्टरनेट मटेरियल उसको चूज करते हैं, फिर उसका मटेरियल का टेस्टिंग वगैरह वो सब भी होता है। तो इतना सब करके, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कहा होता है कि अगर स्क्रू वर्जन अभी मार्केट में चल रहा है, तो स्क्रू वर्जन को एलिमिनेट करके हमें ये फ्लैट वाला वर्जन अगर मार्केट में लाए, और इस प्रोजेक्ट में हम जितना इन्वेस्ट करें, और जितना इन्वेस्ट मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, वो इस रिसोर्स में इतना इन्वेस्ट करें, मतलब हम 3 इंजीनियर अगर इस पे काम करें, तो हमारी तीनों की सैलरी वो प्रोजेक्ट में चार्ज होगी। तो हम इतना चार्ज लगेगा इसको टेस्टिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सबका जो चार्ज आएगा तो उस प्रोजेक्ट में चार्ज आएगा। तो उस प्रोजेक्ट का चार्ज कॉस्ट रिकवर करने के लिए मार्केट में कितना टाइम लगेगा, तो वो भी कैलकुलेशन वो बिजनेस पॉइंट ऑफ होता है। हाँ, तो वो भी फिर उसके हिसाब से टाइम देते हैं कि आपको ये डिजाइन बस इतने दिनों में कंप्लीट करना ही है, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम लोगे तो ज्यादा टाइम का उनका हमारा चार्ज होगा, और उनको ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने टाइम दिया होता है, उतने टाइम के अंदर ही हमें डिजाइन कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो हाँ फीचर है। हाँ, तो ऐसा करके फिर तीनों का डिजाइन सबके इनपुट फाइनलाइज करके हम डिजाइन मॉडिफाई करते पूरा, फिर वो डिजाइन टेस्टिंग के लिए जाता है। और टेस्टिंग में जैसे ना, अगर टेस्टिंग में लॉस हुआ तो बहुत बड़ा ये हो जाता है, क्योंकि टेस्टिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। हमारे इंडियन में लोग खुद का इन हाउस टेस्टिंग भी है, लेकिन बहुत लिमिटेड टेस्टिंग है, मतलब जैसे मैकेनिकल एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह जो है वो इन हाउस होती है, लेकिन बाहर बाकी जो टेस्ट है वो बाहर से करने पड़ते हैं, बाहर के लैब से। तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा आता है। हाँ, और ये जैसा यूरोप मार्केट में चल रहा है पूरा, तो हमारा कॉस्ट पूरा यूरोप में चलता है, टेस्टिंग भी उनके यहाँ होता है। तो यहाँ से पार्ट मतलब डिजाइन वहां भेजना, वहां पर टेस्ट करना, फिर वो पर भेजना, एक तो टाइम का लॉस हो जाता है, एक तो मनी वेस्ट हो जाता है टेस्टिंग का। तो इसलिए जितना ज्यादा एक्यूरेट हो सके टेस्टिंग के लिए उतना एक्यूरेट भेज देते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई माइनर चेंजेस आ जाते हैं टेस्टिंग के बाद, तो फिर से हमें वो करना पड़ता है, फिर टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है, फिर टेस्टिंग का रिपोर्ट लेके फिर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे सकते हैं। तो डिजाइनर का काम इतना होता है, कंसेप्ट जनरेशन से लेके टेस्ट पास होने तक का काम डिजाइन इंजीनियर का होता है। मतलब एक डिजाइन बन रहा है तो उस डिजाइन इंजीनियर ने बाकी पर्सपेक्टिव भी देखने चाहिए कि उसका कॉस्ट क्या लगने वाला है, प्रोडक्शन टाइम क्या लगने वाला है, रिकवरी टाइम क्या होने वाला है, और टेस्टिंग कैसे किया जाएगा। तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पर डिजाइन बनाकर वहीं पर जॉब खत्म होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। जी सर, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर एक मतलब आखिरी सवाल है, थोड़ा सा डिजाइन फील्ड से भी को रिलेट करता है, और बाकी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो कितने इम्पोर्टेंट है प्रोफेशनल करियर में, और एक डिजाइन इंजीनियर के बतौर आपने कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए उस पर थोड़ा बताइए प्लीज। हाँ जैसे जब आप पहली बार मैंने तो प्रेशर ज्वाइन किया कॉलेज से, तब मुझे ऐसा पता नहीं था कि कॉर्पोरेट अगर लाइफ आपकी कॉलेज लाइफ से बहुत अलग होती है। कॉर्पोरेट लाइफ में आप
हर बार यू आर अंडर वॉच ऑफ समवन, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई देख रहा नहीं, लेकिन देखता है बहुत लोग होते हैं, आपको ऑब्जर्व करने वाले बहुत लोग होते हैं। जैसे यस। कि आपने स्टार्टिंग फ्रॉम, हाँ, सीनियर फिर टीम लीड मैनेजर, तो आप जितना अच्छा उनके साथ रिलेशन रखोगे, मतलब ऐसा नहीं बोलना कि मैं उनके साथ हाजी हाजी करना है, ऐसा मतलब नहीं, और ज्यादा दूर भी नहीं रहना, बस फॉर्मल मेंटेन रहना चाहिए उनके साथ। और आपको एक पर्सनल सुझाव मैं भी दूंगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों भी अलग होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो आप बेसिक नॉलेज है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो तो कॉमन है, तो इंटरव्यू पूछ ही लेगा वो। और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो अटायर है, जैसे जिस काइंड ऑफ आप ऑफिस में आते हो, आपका जो पूरा ड्रेसिंग सेंस है, वो भी बहुत मैटर करता है अपने राइट। इंडस्ट्री में। राइट। कि हाँ, हाँ, तो आप जितना अच्छा अटायर रखोगे, मेंटेन रिलेशन अच्छा रखोगे, और इथिक्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं हर कंपनी में, कि आपको एथिकल होना चाहिए। तो कंपनी की जो एथिक्स जो मेरे बताते हैं वो लोग एचआर लोग, तो उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए हमें। अगर एथिक्स का अगर कुछ मिसबिहेव हो गया तो वो बहुत सीरियस एक्शन होते हैं। अगर आपका बोले टेक्निकल नॉलेज कम हो एक पॉइंट पे, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एथिकल आप नहीं रहोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है इंडस्ट्री में। तो यस। आप जितना, हाँ, हो सके अच्छा रखना चाहिए रिलेशन सबके साथ, और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। यस सर। अगर विजिबिलिटी चाहिए आपको, अगर आप टेक्निकल फील्ड में आगे तक रहना चाहोगे तो आपका टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए, तो ऑब्वियस है। लेकिन आप अगर मैनेजर फील्ड या नॉन टेक्निकल फील्ड में अगर जाना चाहते हो, आप टीम लीड मैनेजर, अगर ऐसे जाना चाहते हो आप, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल और विलिंग पावर, जैसे आपको एक टीम है, आपको टीम को टास्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है या टीम को मैनेज करना है। अभी ये प्रोजेक्ट, अभी कैसा होता है, जो प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है टॉप लेवल लीडरशिप की टीम के साथ, तो वो प्रोजेक्ट हमारी टीम को दीजिए, ये कन्विंसिंग पावर भी होना चाहिए आपने। बिल्कुल ये सर। वो पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, तो ऐसे है सर स्किल सेट जो वो कम्युनिकेशन के पॉइंट होने चाहिए। यस यस सर, बिल्कुल सर। मतलब आपके कम्युनिकेशन से कभी एरोगेंस भी दिखना नहीं चाहिए, आपके कम्युनिकेशन से आपको हाँ, प्रोजेक्ट्स भी एक्वायर करने हैं, दोनों तरीके एक्वायर से भी काम करना है करना सर। है। यस सर। और यस श्रीनिवास हाँ, सर, बतौर डिजाइन इंजीनियर आपका डेली किस किस डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन होता रहता है? हाँ सर, तो अभी डिजाइन अगर टीम छोड़ दिया हमने, तो हमारे इधर पुणे में अपना टेस्टिंग लैब है, हमारे जस्ट कंपनी के अंदर ही है। यस। तो वो टेस्ट लैब में जो पीपल होते हैं, हम्म। तो उनके साथ भी अलाइनमेंट हो जाता है, मतलब टेस्ट का जो पूरा ये है सेटअप कैसा होता है, टेस्ट स्टार्ट कैसे होते हैं, तो सेटअप में कौन सा होता है, कोड कितना देते हैं, वो टॉस कितना देते हैं, ये हमें थ्योरेटिकल पता है कि उसको हमें 3 न्यूटन पर मीटर का टॉप देना है, लेकिन 3 न्यूटन का वो एक्चुअल वैल्यू कैसे सेट करते हैं वहां पर जाकर, तो वो एक पता नहीं होता है। तो मतलब वो एक बहुत अच्छी चीज मुझे पता चली कि हम एक्चुअल थ्योरेटिकल कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, लेकिन यस। एक्चुअल लगाते जैसे फोर्स था वो टेस्ट सेटअप देख कर पता चलता है। जब टेस्ट रन होते हैं तब उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, फेलियर्स किस काइंड ऑफ होते हैं, टाइप्स ऑफ फेलियर्स क्या क्या आते हैं। तो ये एक हो गया, इनका हो गया, अभी मतलब टेस्ट लैब के लोगों के साथ एक कॉन्टेक्ट हो जाता है हमारा। या। और फिर दूसरा कॉन्टेक्ट ऐसा होता है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, जैसे कि यस। मैंने बताया कि हम टेस्ट के लिए सैंपल्स बाहर से उनके लिए मंगवाते हैं। जो 3D प्रिंटिंग पार्ट्स होते हैं जो हमारे यहाँ 3D प्रिंट नहीं होते, वो हम बाहर से वेंडर से 3D प्रिंट करवाते हैं। तो वो हम एससीएम टीम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो टीम होती है, उनकी टीम के साथ भी हमारा कनेक्ट होता है। जो आरएफक्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन वो सब रेज भी हम ही करते हैं, कि मतलब अगर किसी वेंडर के पास जा रहे हो तो कोटेशन भी उनका लेना चाहिए, तो कोटेशन मतलब वेंडर के साथ भी कनेक्ट होता है हमारा। या। तो ऐसे मतलब डिफरेंट टीम्स के साथ। और अगर डिजाइन के अंदर ही बात करें तो हमारी बस जैसे टीपीडी एक ग्रुप है, मतलब टेक्निकल प्रोडक्ट डिजाइन, ये टीम है हमारी। तो ये टीम को छोड़ के जैसे मैंने बताया सिमुलेशन के लिए एक सेपरेट टीम है, तो सिमुलेशन की टीम के साथ भी हमारा कनेक्ट हो ही रहता है। यस। और एक सॉफ्टवेयर वाली जो टीम है, मतलब हाँ, अभी हम कैसे, मतलब ये तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन हम जो डिजाइन में जो डे टू डे टास्क करते हैं, तो उसको ऑटोमेट करने के लिए हम आईटी टीम, तो एनएक्स में हम जो टास्क रिपीटेटिव टास्क है उसके लिए हमने एक ऑटोमेशन किया था अभी फिलहाल में, तो उसके लिए हमने थोड़ा पाइथन सीख लिया था, थोड़ा एनएक्स के मॉड्यूल्स भी जान लिए थे। तो एक आईटी सेक्टर का भी, सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज हमने ले लिया। यस। एनएक्स मतलब बस एनएक्स लिमिटेड है, तो ये डिफरेंट स्ट्रीम से जिनके साथ कनेक्ट हो जाता है। वाओ सर, थैंक यू सो मच सर, आपने सभी सेक्टर्स पर इतने बढ़िया तरह से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की।
हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे अब बाकी फ्यूचर में जो डिजाइन इंजीनियर बनने का ख्वाब रखते हैं उनके लिए जो आपने बताए पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले आपने जो बताया कि इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो वो आपकी हाँ शुरुआत ही नहीं होगी। देन आपको बाकी स्किल सेट्स किस तरह ऐड ऑन करने चाहिए वो आपने बताया। डिजाइन सेक्टर किस किस डिपार्टमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करता है वो सब आपने बताया। कंसेप्ट क्या होता है, टेक्निकल डिजाइन क्या होता है, बिजनेस डिजाइन क्या होता है, ये भी आपने बताया सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। एंड ओवर टू प्रतीक्षा मैम। Yes, मैम, sir. यस प्लीज। Yes, yes. Thank you, Srinivas sir, for your time and for your important information actually. क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है information. So thank you for giving this information, sir, and thank you for your valuable time, sir. जरूरी है, स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगी. Yes, sir. Thank you so much. And thank you, Tejas sir, for your time. So Oh, most welcome. yes, sir. Yes. Yeah. Thank you, Thank sir. you, sir. Srinivas sir. Thank you so much. थैंक यू Have a great day, sir. Yeah.